Thank you everyone for the thunderous response and the warm welcome. I convey my sincere thanks and gratitude to Dr. Mukul Sangma, leader of the opposition in the Meghalaya Legislative Assembly. We have with us today Dr. Manas Bhaiya, the Honorable State in charge of All India Trinamool Congress Meghalaya TMC. We have the candidate from South Tuda, Richard Marak, and our candidate from North Tuda, Rupert Sangma. We have Chokpot candidate as well, Lazarus Sangma, Women President of Meghalaya Trinamool Mahila Congress, Selma Shira, Safford Sangma, and Mukul Das. I thank each one of you. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया আমি হিন্দি বাংলা ইংরেজি তিনটে মিলিয়ে বলবো যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় I was listening to Dr. Mukul while he was speaking and I realized that as Dr. Mukul has started losing his voice, on the other hand Conrad Sangma has started losing his sleep. The kind of welcome and the gathering that the town and this part of the city has witnessed today is unprecedented. I was telling Richard, the kind of unwavering faith, support, the amount of love and blessings you have showered upon us, especially when we were walking past the entire route. I will personally remain indebted to the people of Tuda to the last drop of my blood. And I would like to promise you that come what may, Trinamool is going to be with you and stand with you in this fight against this inept, inefficient and corrupt NPP government. We started our journey 1.5 years back to be more precise. And we started this big membership drive about 8-10 months back. Since then, about 4-5 lakh odd members have associated with Trinamool Congress. जब से हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किया है, जिस तादाद में लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं, ये इसी बात का प्रूफ है कि आने वाले दिन में तृणमूल की सरकार बनना खाली समय का खेल है. And when the voting is conducted on the 27th of February and the results come out on the 2nd of March, today is 15th of February. We exactly have 15 days in hand. 13 days in February and 2 days in March. I would like to tell you that if Trinamool can do in Bengal, why can't Trinamool do in Meghalaya? If people of Bengal can teach BJP a lesson, why can't the people of Meghalaya teach BJP and NPP a lesson? Last 5 years, you have given them opportunity to serve you. Last 5 years, you voted for them although the mandate was different. Still they formed the government and you had lot of hopes, aspirations, dreams in your mind that at the end of the day there will be some development, all-round development for the state of Meghalaya. People of Meghalaya will be benefited in a way. But last 5 years, before you go and exercise your franchise and exercise your voting right on the 27th of February, ask yourself a simple question. That is this the Meghalaya you wanted to see? Meghalaya doesn't need a puppet. Meghalaya needs a true leader who can stand for its own people. Meghalaya doesn't need a puppet who will bow down and dance to the tunes of his master sitting in the ivory towers of Delhi and Guwahati. Meghalaya needs a true leader who can fight for the people, who can fight for this land and who can fight for the right cause. Trinamool has raised this demand of
inclusion of Khasi and Gado language in the 8th schedule of the constitution. In the last 1 year we have raised this in the parliament thrice. 3 बार हम लोग ने इस मुद्दे को उठाया। 2019 में चुनाव हुआ, कांग्रेस का एक एमपी जीता और एनपीपी का एक एमपी जीता। 2 एमपी में एक एमपी भी ये मुद्दे को संसद में नहीं उठाया। मेघालय से आज के दिन में हमारे पास एक भी एमपी नहीं है, लेकिन फिर भी ये खासी और गारो लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 3 बार संसद के अंदर हो बाहर हो हम उठा चुके हैं और आने वाले दिन में भी उठाएंगे। बंगाल में जीतने के बाद हम लोग ने जो वादे किए थे वो वादे हम लोग पूरे करके दिखाए। मेघालय में भी हम लोग वी कार्ड की बात किया, हम लोग माई कार्ड की बात किया, जहां पे जितने भी बेरोजगार युवाएं हैं सबको 1000 रुपए सीधा अपने बैंक पे हर महीने मिल जाएगा तृणमूल का सरकार बनाने के बाद। जितना भी परिवार है, हर परिवार का एक महिला को किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तृणमूल की सरकार जीत के आएगी 2 तारीख को और पहला कैबिनेट में हम लोग इसको पास करा के हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे कि वी कार्ड जो हम लोग प्लान किया है वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, वुमेन एम्पावरमेंट कार्ड, उसमें जितने भी परिवार है हर परिवार का एक महिला सदस्य को महीने का 1000 और सालाना 12000 रुपए सीधा आपका बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। और ये सब वादे नहीं है, ये हमने करके दिखाया है, वेस्ट बंगाल में करके दिखाया है। सो दिस आर नॉट प्रोमिसेस, दिस आर प्लेजेस। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसेस एंड प्लेजेस। Promises are meant to be broken, pledges are meant to be kept. And जितना भी हम लोग आपको 10 पेज का मैनिफेस्टो रिलीज करके आपके सामने रखा है, हम लोग मर जाएंगे लेकिन ये 10 चीज 3 महीना के अंदर एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है आपको। अगर सरकार चाहे तो नहीं करने वाली कोई बात नहीं है, सब कर सकता है भाई, इनके इरादे होने चाहिए। आप देखो असम और मेघालय में जो मुकरो का इंसिडेंट हुआ, ऐसा इंसिडेंट पूरा देश में नहीं हुआ। 3 महीना हो गया, जो ऑफिसर्स ने गोली चलाई उनके ऊपर कोई कार्रवाई किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उनको इन्वेस्टिगेशन में बुलाया गया। भाई मेघालय का चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप चीफ मिनिस्टर हो, आपका कुछ जिम्मेदारी लोगों के प्रति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपके प्रदेश के लोगों के ऊपर अगर फायरिंग हो रहा है और बेवजह गोलियां चल रही है, जानबूझ के मासूमों को मारा जा रहा है, तो आप चीफ मिनिस्टर होने का फायदा क्या है? आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप किस हक से लोगों के पास जा रहे हो? आप किस मुंह से लोगों के पास जा रहे हो? Bengal also shares its states border with states like Jharkhand, Odisha. Meghalaya shares its state border with Assam. जैसे मेघालय अपना स्टेट का बॉर्डर असम से शेयर करता है, वैसे बंगाल भी अपना स्टेट का बॉर्डर एक तरफ असम, एक तरफ झारखंड, एक तरफ उड़ीसा, ये सारे स्टेट से शेयर करता है। किसी का हिम्मत है कि बंगाल में ऐसा करके दिखाएगा? किसी का हिम्मत है, चाहे उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, असम का हो, कि गोली चलाएगा बंगाल के 5 लोगों के ऊपर? सोचने की हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का नाम ममता बनर्जी है। और यहां पे पता है चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं करेगा, इसलिए मासूमों को मारो। जिन्होंने हत्या किया एक नोटिस तक उनको भेजा नहीं गया। आप किस लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में टिके हुए हो? आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं भेजा मैं आपको बताता हूं। क्यों इसका कार्रवाई नहीं होता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर कार्रवाई जिस दिन शुरू हुआ, असम में जो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है वो बीजेपी का आदमी है, केंद्र में सरकार बीजेपी का है,
जिस दिन यहां का मुख्यमंत्री नोटिस भेजा असम को, अगला दिन ईडी नोटिस भेजेगा कॉनराड को। तो ईडी और सीबीआई से बचने के लिए और अपना जितना 2 नंबरी का धंधा है ये सब चलाने के लिए और पैसा रोकने के लिए, पैसा बचाने के लिए वो अपने लोगों की कुर्बानी दे रहे। ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए इस प्रदेश को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहिए? आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आपके लिए खड़ा रहे, जो आपके लिए लड़े, जो आपके लिए जिंदगी दांव पे लगा के, जान झोंके में डाल के आपके लिए काम करे, आखिरी बूंद तक खून का आपके लिए काम करे। मुख्यमंत्री वो होता है। हमेशा मेघालय को दिल्ली के आगे झुकना क्यों पड़ेगा? हमेशा मेघालय को असम के आगे झुकना क्यों पड़ेगा? लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, मुझे इस बात में भी आपत्ति है। मैं समझता हूं मेघालय नॉर्थ ईस्ट नहीं, मेघालय ईस्ट का हिस्सा है। आप देश में कहीं भी चले जाओ, गुजरात को तो लोग नॉर्थ वेस्ट नहीं कहते, कई राज्यों को तो साउथ ईस्ट नहीं कहते, किसी को साउथ वेस्ट नहीं कहते हैं। तो ये जो छोटे 4-5 स्टेट है, इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों कहेगा? दे आर पार्ट ऑफ द ईस्ट। और सूरज जैसे ईस्ट में उगता है, इस बार भी देश का भविष्य ईस्ट से उगेगा। एंड बंगाल हैज शोन द वे। मेघालय हैज टू फॉलो सूट। मेघालय हैज टू प्रूव हिज मेटल एंड माइट टू द वर्ल्ड कि हम लोग क्या कर सकते हैं। भाई हम लोग झुकने वालों में से नहीं है। आप मुझे बताओ, आई वॉज आस्किंग डॉक्टर मुकुल एज आई वॉज वॉकिंग पास्ट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टोरेट ऑफिस, द ट्रेजरी ऑफिस, the DIG office, Tuda police station, the entire stretch is, completely merged in darkness. There's no light. There's no arrangement for street lights on either sides of line of the roads. So I asked him, does this constituency belong to Conrad? Dr. Mukul said yes. आप अपने आप से पूछो कि 2 कदम आगे चलो, पूरा रास्ता अंधेरा है। अरे जो चीफ मिनिस्टर अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोशनी नहीं लगा पाया, वो रोशनी कहां से स्टेट में लाएगा? जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट नहीं ला पाया, वो स्टेट में कहां से डेवलपमेंट लाएगा? जो पूरा मेघालय में एक मेडिकल कॉलेज नहीं कर पाया, अस्पताल के आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, everything is in shambles, in doldrums. Shillong Medical College is existing only in paper. They announced of forming Tuda Medical College. It's also in doldrums. आपको पता है बंगाल में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? बंगाल में 23 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 16 गवर्नमेंट और 7 प्राइवेट। और बंगाल में कितना डिस्ट्रिक्ट है? बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट है। उस हिसाब से मेघालय में 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो कितने मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए? अभी तक एक नहीं है। यह है आपका डबल इंजन सरकार का नमूना। यह है डबल इंजन सरकार का एग्जाम्पल कि ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना लोगों के पास पैसा है। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी करके पूरा इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। Oust the corrupt, inept, inefficient NPP government of power and teach them a lesson that they will remember for the rest of their life. Many, many thanks. Mithila, Trinamool Congress Zindabad, Jai Meghalaya. Glory to this lovely state.